Hello friends, welcome back to my channel Psychology Point. Today I am going to make video which would be helpful for the parents who want to improve their relationship with the children as well as help them in academic success. So let's start this parental counseling session. And this I am doing in a new style today with the PPT which I had prepared on my own. So let's start. As you can see on the PPT, the topics are well mentioned which I am going to take up in this session. First, parental involvement is very much essential for child's academic progress, as well as how as a parent you can help your child to come up to the class level. Okay, so let's start. Let me start the first slide. So in this it is shown that Mrs. Sharma has lost her money. So the question to you all is, will she search the money? Please pause the video and write it in the comment box. Yes, she is going to search the money, no doubt. Even मेरे भी अगर आज 10 रुपए भी गुम जाएं तो मैं सर्च करूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है पैसे की इम्पोर्टेंस क्या है. उसी तरीके से एक बच्चे की लाइफ में चाइल्डहुड की क्या इम्पोर्टेंस है, आज के सेशन से हम ये समझेंगे. So let's see what's important for our children. The first thing which is important for our children is healthy environment at home. Isn't it? I hope all of you agree with this. Please write in the comment box. Yes, we do all agree that home environment plays a very, very important role in child's development. Okay, so for this, let us answer some of the questions. You can see the slides changing. How many of you will help your child to keep the study table organized? या कितने लोग आप लोगों में से बच्चे को हेल्प करते हैं कि उसका स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज्ड रहे, या उसमें हैबिट इनकलकेट करते हैं कि वो अपने आसपास का एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड रखे? Isn't it? Please mention in the comment box. If it was a live session, I would have taken your comments that time. Otherwise, I'll be reading your comments. तो देखिए, अब इसकी इम्पोर्टेंस आप लोग समझते होंगे कि जितना ही हमारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होंगी उतना ही हमारा टाइम कम वेस्ट होता है, उतनी ही हम प्रोडक्टिव काम कर पाते हैं, उतना ही हमारा स्ट्रेस लेवल रिड्यूस रहता है. तो एक फर्स्ट स्टेप है बच्चे के लिए सक्सेसफुल होने के लिए कि उसकी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हों. ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है बच्चे का. उससे उसका फोकस बनता है पढ़ाई में. 10 चीज़ें आपकी टेबल पे रखी होंगी अननेसेसरी, बच्चा उससे डिस्टर्ब्ड होगा. दे विल एक्ट एज अ डिस्ट्रैक्टर फॉर द चाइल्ड. ओके, now let's proceed to the next question. This question is really very personal question, my dear parents, but is very important for your child's progress. So please mention in the comment box how many of you try to have a positive relation with your spouse. It's very, very important because आपकी relationship जितनी अच्छी है अपने स्पाउस के साथ, तो बच्चे को इससे इमोशनल सिक्योरिटी और सेफ्टी महसूस होती है. इस एटमॉस्फेयर में बच्चा हैप्पी रहता है, और हैप्पी बच्चा जो है चीज़ें जल्दी सीखता है, उसकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी होती है, प्लस वो पॉजिटिव होता है लाइफ को लेके, और पॉजिटिविटी शोज अप इन हिज बिहेवियर. ओके, now let me ask you the next question. Do you all take regular feedback from the children? जब बच्चा घर पर आता है तो क्या आप पूछते हैं कि स्कूल में क्या क्या हुआ? इनफैक्ट जैसे ही आता है, देखिए 3 टाइम होते हैं दिन के वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर आप बच्चे से अच्छा कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो
सुबह का टाइम जब आप बच्चे को तैयार करते हैं, जब बच्चा स्कूल जाने के लिए उठता है तो उसको इस तरीके से उठाएं कि ही डजंट गेट डिस्टर्ब. Give him time, little time to get up and get ready for the school. उस समय आप बच्चे को हंसते हंसते उठाते हुए और तैयार करते हुए स्कूल भेजेंगे तो ही विल रिमेन हैप्पी थ्रू आउट. ओके. लेकिन अगर डांट फटकार के खुद ही कभी हम देर हो जाती है हमको तो हम लोग जल्दी जल्दी के चक्कर में बच्चों को भी डांट देते हैं, तो उससे बच्चे का सारा दिन मूड स्पॉइल रहता है. तो इस चीज पर भी हमें बहुत फोकस करना है. और जैसे ही बच्चा स्कूल से आता है उससे आप फीडबैक लीजिए कि आज स्कूल में क्या क्या कराया गया. बच्चा अगर आपको सब पॉजिटिव बातें बता रहा है तो दैट मीन्स ही हैज लर्न्ड नाइसली इन दिस स्कूल. और अगर कभी बच्चा कुछ नेगेटिव बताता भी है, जैसे मैम ने आज मेरी स्पेलिंग एक गलत चेक कर दी कॉपी में, तो उसको केवल इग्नोर करिए, क्योंकि बच्चों को अभी इतनी समझ नहीं है. उनको हम ही को सिखाना है कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. टीचर इज ऑल्सो वेरी बिजी, सो हो सकता है कभी कभार मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो बस उसको इसी को कह के इग्नोर कर देना है और समझा के कि टू अर्न इज ह्यूमन. आप अपना बताओ. इसके अलावा आप बच्चे से पूछिए कि अगर उसका टेस्ट हुआ है तो अगर वो आपको आके ये बताता है कि मेरे आज 4 स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, आप कॉपी निकालिए, देखिए कितने मार्क्स का टेस्ट था. आप उसे सपोज 20 मार्क्स का टेस्ट था, आप उससे कहिए कि बेटा 16 स्पेलिंग्स आर राइट. एंड देखिएगा कैसे बच्चे का मूड चेंज होता है, कैसे वो समझने की कोशिश करता है कि मेरी मम्मा मुझसे कितना हैप्पी हैं और मुझसे मतलब मुझे बता रही हैं कि कितनी सही चीज मैंने कितनी सही चीज करी. दिस विल हेल्प अस टू इंक्रीज हिज सेल्फ एस्टीम. वो अपना वर्थ समझेगा कि मैंने हाँ ये चीजें ठीक की हैं. और उसके बाद जब शाम को आप उसको पढ़ाने बैठे तो वो 4 स्पेलिंग्स 5 टाइम रिपीट कराएं, या जैसे भी आप रिपीट कराएं. रिपीट कराना भी बहुत ज़रूरी है, बच्चे को मिस्टेक बताना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन पहले बच्चे को पॉजिटिव चीज़ें बताएं, उसके बाद उसकी मिस्टेक्स बनाओ. और बिल्कुल मिस्टेक को नॉर्मल बताएं कि हम सबसे मिस्टेक होती है लेकिन हमें सीखना है. तो इससे आप बच्चे से कनेक्शन एस्टैब्लिश कर पाओगे अच्छे से. अब मैं बात करूं अगर पेरेंटिंग स्टाइल्स की, तो 4 पेरेंटिंग स्टाइल बेसिकली होते हैं. एक अथॉरिटेरियन टाइप, जिसमें पेरेंट्स का कंट्रोल होता है, केवल वो केवल कमांड देते हैं एंड द चाइल्ड हैज टू फॉलो. मिलिट्री रूल. तो क्या आपको लगता है मिलिट्री रूल से बच्चे सीख पाएंगे कुछ? डरे रहेंगे बच्चे मिलिट्री में. जब अब एडल्ट्स जाते हैं दे नो दे लर्न डिसिप्लिन. बट अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, वो डर के कुछ नहीं सीख सकते. डर के आप किसी को कुछ नहीं सिखा सकते. डर के एसोसिएशन से आप किसी को कुछ नहीं सिखा पाएंगे, प्यार से सिखा पाएंगे. सेकंड है आपका परमिसिव स्टाइल. इसमें मतलब इस वाले स्टाइल में तो पेरेंट्स जो हैं बच्चे को इतना फ्रीडम दे देते हैं कि वही उस राजा है. ओके, तो ये भी गलत है. हमें बैलेंस्ड वे में चलना है. और एक होता है अनइन्वॉल्व्ड स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग, जिसमें हम बच्चे के साथ कुछ इन्वॉल्व ही नहीं है. बच्चा आया हमारे को कुछ बता रहा है, हम अपना मोबाइल देख रहे हैं, हम अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, हम बच्चे के साथ कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है. उसके बाद है नेक्स्ट स्टाइल विच इज द बेस्ट स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग अकॉर्डिंग टू वेरियस साइकोलॉजिकल रिसर्चेस. It is authoritative parenting style. Authoritative parenting style में आप बच्चे के साथ बैठते हैं, उसके साथ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं और उसके साथ आप कॉन्सिक्वेंसेस भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपने ये रूल ब्रेक किया तो इसका ये कॉन्सिक्वेंस होगा. जैसे अगर आज आपने अपना टाइम टेबल उसी के साथ बैठ के सेट किया कि 4 से 6 आपको पढ़ना है, 6 से 7 आपको डांसिंग एक्टिविटी में या किसी चीज में भी जाना है.
अगर 4 से 6 में बच्चे ने अपनी पढ़ाई नहीं पूरी की तो आप उसकी डांसिंग एक्टिविटी कैंसिल कर सकते हो। हम उसको पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, हम उसको उसकी फेवरेट एक्टिविटी से थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं। उसको बस सिखा रहे हैं कि अगर आपने अपने इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ द डे नहीं कंप्लीट किया तो आप इससे वंचित रहेंगे। और ये आप पहले उसके साथ ही बैठकर डिसाइड करिए कि आप क्या करना चाहते हैं। बच्चे से भी पूछिए। रूल्स और रेगुलेशंस बनाने में बच्चे को जब इंक्लूड किया जाता है तो बच्चा बहुत हैप्पी फील करता है। वो अपने आप को सोचता है यस कि आई एम ऑल्सो समबडी हु इज इनटू इट। ओके, उसके बाद अब आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं बच्चों की एकेडमिक academic enhancement के लिए? What steps you can take to enhance your child's progress? See, सबसे पहले रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। रोज होमवर्क चेक करें, रोज क्लास वर्क में क्या कराया गया है सब चेक करें। अगर आप पढ़ाते हो या अगर ट्यूशन टीचर भी आते हैं आपके घर में तो भी एज अ पेरेंट आपकी ड्यूटी बनती है कि आप बच्चे से देखें कि उसकी कॉपी में क्या काम हुआ है, उससे पूछें। अगर वो कह भी रहा है कि मैंने अपनी टीचर को सुना दिया या मैंने अपने ट्यूशन टीचर को सुना दिया, तो भी आप उसमें से इवन अ इलिटरेट पेरेंट कैन आस्क, डियर पेरेंट्स, our responsibility doesn't lies only in sending the child to school, please. Okay, we need to check what is going on in the school, what is the child learning, where the child's problem is. As a parent, as a mother, we can understand the style of working of our children rather than any other person, a teacher or anyone else can understand. I'm telling you. तो आप बच्चे के साथ जब टाइम स्पेंड करेंगे, उसको समझने की कोशिश करें, फिर आप उस तरीके से आप ट्यूशन टीचर को गाइड करिए कि मेरे बच्चे को इस तरीके से समझ में आता है। थोड़ी सी कोशिश करिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप थोड़ी सी कोशिश करिएगा, आपको सब समझ में आएगा। क्योंकि एक छोटे 1 to 5 तक के बच्चों को पढ़ाने में कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं होती। इवन जो इलिटरेट पेरेंट्स भी हैं वो भी अपनी प्रेजेंस शो कर अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करके बच्चे के एक्सप्रेशन से आप समझ जाएंगे कि मेरे बच्चे को समझ आ गया है ये कंसेप्ट कि नहीं। तब तक आप उसके पीछे लगे रहिए। तो देखिए, अगर आप एफर्ट करेंगे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप फिर से उसके ट्यूशन टीचर से शिकायत करें कि ये नहीं इसको समझ में आया है मैम, इसको फिर से समझाइए, समझेगा। स्कूल टीचर्स के पास आई कैन अंडरस्टैंड इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत एफर्ट्स करती हैं। ओके, इसके बाद आप क्या कर सकते हो? क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। क्वालिटी टाइम की डेफिनेशन ये होती है कि आप बच्चे के साथ जिस समय कम्युनिकेट करते हो, ओके, वो आपका क्वालिटी टाइम। अगर आप बच्चे को आप ले गए पार्क, आप हस्बैंड वाइफ बैठकर अपना बातें कर रहे हैं और बच्चा इधर उधर लाइक स्पेंडिंग द टाइम हियर एंड देयर, तो दिस इज नॉट द क्वालिटी टाइम यू आर गिविंग। इफ यू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन हिज प्ले, बॉल मतलब गेंद खेल रहे हैं और वॉट एवर यू आर प्लेइंग विद द चाइल्ड, then that is okay, that is good, that is involvement. He will be catching the ball, you will be catching the ball or something, whatever activity you will be doing with the child, that will show his involvement. उसमें आप बच्चे को 10 चीज़ें सिखा सकते हो उसी एक्टिविटी से रिलेटेड, या आपके मन में जो भी आता है कि मुझे अपने बच्चे को संस्कार देने अच्छे, तो इस क्वालिटी टाइम में आप वो संस्कार दीजिए। आफ्टर स्टेप जो हम ले सकते हैं, उनको हमें एनकरेज करना है, उनको हमें अनकंडीशनल सपोर्ट देना है। एज अ पेरेंट इट इज़ अवर ड्यूटी कि बच्चे कुछ भी कर ले, ही इज़ माई चाइल्ड, ही इज़ और शी इज़ माई चाइल्ड, एंड उसके प्यार इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग कि अगर उसके अच्छे मार्क्स आएंगे तभी मैं प्यार करूँगा, या अगर वो ऐसा करेगा। देयर इज़ नो इट्स एंड बट। इफ द चिल्ड्रन आर ओन,
We have to give them unconditional love which will make them feel happy about and they will perform better. उसके अलावा अगर हम बात करें स्टडी हैबिट्स की डेवलप करने की, तो यू कैन हेल्प द चाइल्ड एज आई टोल्ड यू कि कैसे आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, कैसे आप अपने बच्चे की कौन सी चीज़ उसको किस तरीके से समझ में आती है उसको समझने की कोशिश करिए। उसके अलावा आप ये भी समझने की कोशिश करिए वो किस टाइम पर बेटर परफॉर्मेंस देता है। हर बच्चा सुबह उठकर नहीं पढ़ सकता, हर बच्चा रात को नहीं पढ़ सकता, तो अपने बच्चे का स्पेसिफिक टाइम आइडेंटिफाई करिए कि वो कब पढ़ सकता है, उसको उसी समय पढ़ने बिठाइए। उसके अलावा आप उसके साथ कुछ गेम्स खेल सकते हैं। मेमोरी गेम्स खेलिए, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा। आप बच्चा रूम में एंटर करता है, कहीं नई जगह आप उसको ले गए हैं, तो आप उससे पूछिए, मतलब 2 मिनट्स के लिए उसको रूम को देख ऑब्जर्व करने दीजिए। उसके बाद उससे आइज क्लोज करके पूछिए कि व्हाट डिड यू सॉ इन दिस रूम। कुछ चीज़ें वो भूलेगा, उसको दोबारा कराइए। इस तरीके के गेम्स खेल सकते हैं। या साइमन सेज गेम एक बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छा गेम है फोकस इंक्रीज करने का बच्चे का, कि जब आप कोई चीज़ कहेंगे तब उसको नहीं करनी है। जैसे इफ़ आई विल से होल्ड द ईयर्स तो ही विल नॉट, व्हेन आई से कि साइमन सेज होल्ड द ईयर देन ही विल से। तो आप ऐसे 4, 5, 10 चीज़ें डिसाइड कर लीजिए व्हाट साइमन इज गोइंग टू से, और उसको जल्दी जल्दी सीखिए, जल्दी जल्दी बच्चे के साथ करें, तो दैट विल हेल्प हिम टू इंक्रीज हिज फोकस। इसके अलावा बच्चे की दोनों हैंड्स यूज करना सिखाएं बच्चे को। डोमिनेंट हैंड यूजुअली सबका राइट हैंड होता है, बच्चे यूज करते हैं। जो लेफ्ट हैंड है उसको भी यूज करें। जैसे पानी उठा रहे हैं, ग्लास उठा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड यूज करें। या कोई भी चीज़ें उठाने रखने वाला काम है उसमें लेस डोमिनेंट हैंड यूज कर सकते हैं। वन स्लाइड डियर पेरेंट्स, ये आपकी बहुत कॉमन कंप्लेन होती है कि बच्चा सुनता नहीं है, तो उसको सुनाने की आप किस तरीके से सुनाते हैं ये डिपेंड करता है आप पे। बच्चे का चाइल्ड इज समटाइम इन हिज ओन वर्ल्ड। प्लीज 6, 7 years 8 year child is in his own world, he is busy doing something। अब आप उसको वहीं दूर से आवाज लगाते हैं, बेटा इसको नहीं, इधर सुनो सुनो सुनो, वो नहीं सुनेगा। आपको उसके पास जाना है, उससे आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, और फिर उसको कहना है कि यू डू दिस और यू डू दैट वॉट एवर यू वॉन्ट टू। ये ट्राई करिएगा, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये टेक्निक वर्क करती है कि नहीं। सेकेंड चीज जो आप कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन को चेक करिए कि आप उसको, जैसे एक कोई बच्चा है वो सोफे पे जंप कर रहा है, आप उसको कहते हैं डोंट जंप ऑन द सोफा, डोंट जंप ऑन द सोफा, तो बच्चे को जो आप चीज़ मना करें उसको अच्छा लगता है वही करूँगा मैं। इससे बोलने की बजाय आप ये उसको समझाइए कि उसको क्या करना है। देखिए, जंपिंग इज अ गुड थिंग फॉर द चाइल्ड, प्लेइंग इज अ गुड थिंग फॉर द चाइल्ड। आप उसको ऑप्शन दीजिए कि हाँ बेटे सोफे पे नहीं जंप करो, मीन्स डोंट से दिस कि सोफे पे ना जंप करो। आप उसको कहो बेटा यहाँ से उठिए, गो आउटसाइड एंड प्ले, जहाँ पे भी आप उसको कहना चाहते हैं। उसके अलावा लैंग्वेज आप ध्यान रखें, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज यू आर यूजिंग विद योर किड्स, बिकॉज दे इम्बाइब। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कंप्लेन लेके, मैम अब्यूसिव लैंग्वेज बच्चे यूज करते हैं। कहीं ना कहीं बच्चे सुन रहे हैं, उसके लिए सोसाइटी इज रेस्पॉन्सिबल, योर एनवायरमेंट एरिया इन विच यू लिव, दैट इज वेरी वेरी रेस्पॉन्सिबल। ओके, आपको मेरा ये वीडियो जरूर हेल्प करेगा। प्लीज डू हेल्प, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, इट वुड बी एन एनकरेजमेंट फॉर मी। और जो भी टॉपिक आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस पर अवश्य वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।